the group leader is Abdul Khalik Suraki and along with the four other members are also there. So they are going to make presentation about the Al-Barqa, the introduction of the Al-Barqa, how it is working the Al-Barqa, and they are also going to justify that how it's different from the conventional bank. Al-Barqa is completely Islamic bank, so how it is different from the conventional bank. So that is the basic topic of the today's presentation. So without wasting time, I would like to invite Abdul Khalik Suraki to come on the dais, introduce the group members and start the presentation formally. Start with the glorious name of Allah, who is the King of the Kings and the Lord of the Lords. Respectable sir and my dear brothers and sisters. This is me, Abdul Khalik Suraki, along with my group members who are going to present the presentation on the Al-Barqa Bank, Pakistan Limited. So these are my group members, Mr. Abdul Bari, Mohammad Sajid, Mosna Mehla, and Shoaib Al-Shah. So these are my group members. Please come on. This is Abdul Bari Suraki. This is Mohammad Sajid Sheikh. This is Sayyid Shoaib Al-Shah. This is Mosna Mehla. Thank you. Thank you. Moving further to the history of Al-Barqa Bank. Al-Barqa Islamic Bank is the pattern of Islamic banking in Pakistan that operates since 1991. And Al-Barqa Bank is part of the Islamic banking group founded in 2002. Chartered an Islamic wholesale bank in Bahrain in 2002. And Al-Barqa Bank Limited is the result of merger between Al-Barqa Muslim Islamic Banking and Al-Barqa Banking Group in operational banking of Bahrain and Emirates. And they have commenced their operational activities in October 30, 2010. And they provide a wide array of Islamic products like Musharaka, Madara, Jara, and exporting banks. Al-Barqa Bank's commitment to Islamic Sharia. Al-Barqa Islamic Bank and Al-Barqa Banking Group are fully committed to develop integrated financial system and compliance on Islamic Sharia rules and regulations. All the activities are very closely regulated by the Islamic scholars and advisors that are preparing in Pakistan. So, moving further to Al-Barqa Bank, Pakistan, current status of Al-Barqa Bank in Pakistan, having assets of $2.2 billion and workforce of 2,300 professionals working in branches, different branches, and 190 plus branches are available in 97 cities and towns in Pakistan. And globally level, it is spread in 3 continents, 17 countries, more than 700 branches, and more than 13,000 employees. And 3 continents including Asia, Europe, and MENA. MENA consists of 2 Middle East and North America. These are the products and services including basic banking account, current account, salary account, and others. But the main top products are current account, salary account, Asana account, and cars account. Further will be described by Mr. Kumar. Assalamu alaikum. It's me, Abdul Bari, and I'm going to present the Al-Barqa products. Start here. You. शुरू में स्टार्ट कर रही इंट्रोडक्शन ब्रेक कर कोई हाने स्टार्ट Assalamu alaikum. It's me, Abdul Bari, and I'm going to present Al-Barqa products. So, number first is Al-Barqa current account. Current account हम उससे कहते हैं कि जो Al-Barqa बैंक है, अगर कोई भी अकाउंट ओपन करवाने जाएगा तो उसमें जो है ना करंट अकाउंट में कर्जा हासिल इस्लाम के पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो जो करंट अकाउंट Al-Barqa का है जो कर्जा
असला जो हम तो डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक में और तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं बैंक में जो हमें उसके ऊपर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके ऊपर जो बेनिफिट होता है वो हम नहीं लेते इस्लाम के हिसाब से। और नंबर सेकंड है कि सेविंग अकाउंट में जो है तो इसको हमें इस्लाम के पॉइंट के हिसाब से देखा जाए जिसको हम मुदारबा करते हैं। मुदारबा इसलिए करते हैं इसमें जो है ना तो एक बंदा होता है कि वो इन्वेस्ट अलबरका सेविंग अकाउंट जो डिपॉजिटर होता है वो जो है एक बंदा डिपॉजिट करता है, एक जो उसका जो है कैपिटल होता है वो इन्वेस्ट करता है किसी बंदे को देता है, वो जो दूसरा बंदा होता है वो मुदारब होता है वो इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम बदले माफ करते हैं। और नंबर थर्ड जो है अलबरका आसान अकाउंट सेम है जैसे कि जो ऊपर अकाउंट बने हुए हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, ऐसे ही एक अकाउंट है जो स्टूडेंट के लिए बना है या किसी जो भी अकाउंट ये ऐसे समझे कि जनरल अकाउंट बनाया जाता है अलबरका बैंक। और नंबर फोर्थ जो है अलबरका खजाना अकाउंट हम उसे कहते हैं कि जो ज़्यादातर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है ना तो वो तकरीबन 1 लाख होती है, उसके ऊपर जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। और नंबर 6 जो है अलबरका करंट डिपॉजिट में ये होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो मनी मिनिमम आपको 25,000 इन्वेस्ट करते होते हैं, उसके ऊपर जो है वो आपको बेनिफिट और प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। आप पे डिपेंड है जितना आप उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो नंबर लास्ट जो है ये अलबरका माना आमदनी हम उसे कहते हैं कि जो एक बैंक जो है तो वो मंथली बेनिफिट देती है या एक कस्टमर को जो अफोर्ड न कर सकते हैं इसकी जो आमदनी होती है और जो उसकी इनकम होती है और मीडियम होती है उसको ये बेनिफिट दिया जाता है कि आप जो है ना इतने पैसे हमारे पास है डिपॉजिट करें और आपको जो खर्च ज़्यादा है तो वो आपको बेनिफिट देते हैं। So further I would like to call upon Mr. Sales to talk. Hello, this is Yunisha. And the next products that are being introduced by Albaraka Banks are Albaraka Business Plus. Basically, it is especially for those customers like business class or individuals that can be operate as a regular basis of transactions. इसमें जो टारगेट मार्केट है जो ये टारगेट करते हैं इन कस्टमर्स को वो है हमारे सोल प्रोवाइडर्स, पार्टनरशिप, बिजनेस एंड एंटिटीज लाइक बिग बिजनेस। और इसमें जो है हमारा प्रोडक्ट फीचर्स जो हैं उनके वो है लाइक इसमें 2 टायर्स आते हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में हमारा बेसिकली वो होता है जो हमें सिंपल या हम कह सकते हैं कि बेसिक वैरियर्स, और टायर 2 जो है हमारा वो सुपर वैरियर्स है। और बेसिक वैरियर्स में हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं अप टू 25,000 to 60,000 एंड देन टायर 2 में जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिपॉजिट जैसे अकाउंट हम खुलवा सकते हैं उसमें होता है कि 1 लाख से ऊपर तक हम कर सकते हैं। देन अलबरका शफकत अकाउंट, इसमें हमारा जो है इसमें जो टारगेट करते हैं हम वो सोसाइटी के लिए होता है, जैसे हमारे एज डिसेबल्ड पर्सनस हो गए, जैसे हमारे एजिड हो गए जैसे 55 प्लस एंड विडोज। दिस अकाउंट इज टारगेटेड फॉर दोज दीज काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें हमारा जो डिपॉजिट हम कर सकते हैं बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं अप टू 10,000। और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है हमारे वो हैं लाइक हम इसमें जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें कि जैसे चेक बुक वगैरह या जैसे इंटरनेट बैंकिंग सर्विस उसमें वो भी अप्लाई वो हमें ऑफर करते हैं। देन वी हैव अलबरका महाना बरका अकाउंट। अब ये बरका अकाउंट महाना फॉर लाइक सैलरी पीपल जो हमारे मंथली जो एम्प्लॉयज हैं हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड दैट लाइक जो हमारे मंथली बेसिस पे प्रॉफिट चाहते हैं उनके लिए है। और हमारा आ गया
हलाल मुनाफा अकाउंट, ये दोनों जो है शफकत बहाना बना था, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेस करते हैं मुदारबा पे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मुदारबा। देन वी हैव हलाल मुनाफा अकाउंट। हलाल मुनाफा अकाउंट ये भी वही है कि इसमें जो है मंथली बेसिस पे हम हलाल प्रॉफिट, और प्रॉफिट इनका ऐसे चार्ज होता है जैसे वो ये हलाल बेसिस पे, और इनका जो प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस और मंथली क्रेडिट होता है। और देन वी हैव टिफिल यंग सर्विस सेवर्स अकाउंट। ये है जो हमारा ये टारगेट करता है यंगस्टर्स को। लाइक इनका एम यही है कि हम जैसे कोई यंगस्टर फर्स्ट बैंक अकाउंट क्रिएट करे, उनका जो फर्स्ट एम हो तो वो हमारे बैंक अकाउंट से ही करे, तो इनका टारगेट होता है यंगस्टर। इसमें हमें डिफरेंट है, इसमें हम वो 1 अकाउंट जो है उसमें ओपन कर सकते हैं। देन डिफरेंट इनके बेनिफिट्स हैं, लाइक इनका लिमिटेशंस आर देयर, फ्री विड्रॉल्स हैं, फ्री ट्रांजैक्शंस हैं, एंड इट्स इजी। देन फाइनली द लास्ट प्रोडक्ट वी हैव अल बराका कार्जा। ये एक स्कीम है, इंस्टॉलमेंट है, जिसमें हम इसमें ये ऑफर करते हैं कार्ड्स वगैरह लाइक स्कीम। इनका ये टोटल होता है 12 मंथ्स टू 60 मंथ्स का इनका जो टोटल स्कीम है। इसमें ये ऑफर करते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया कार्ड्स, एंड देन आफ्टरवर्ड्स I would like to call Mr. Mohsin to continue the further presentation. Assalamualaikum, this is Mohsin Ali. So the next is Al Baraka services. Al Baraka services. These are the Albayt Home Finance, Rahman Travel Services, Sarparast, Family Takaful Plan, Al Baraka Debit Mastercard, Al Baraka Union Pay, Debit Card, Al Baraka Mobile Banking App, and the last one Tractor and Agri Finance. अब अलबैत होम फाइनेंसिंग में क्या होता है कि अल बरका बैंक बहुत सारे इंडिविजुअल्स को लोन्स ऑफर करती है। ये लोन्स बंदों को लोन्स ऑफर करती है। अब ये जो लोन्स ऑफर करती है वो 4 किस्म के कामों के लिए ऑफर करती है। एक वो बंदे जो कि जिनके पास अपना घर नहीं होता और वो अपना घर बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनको ये लोन्स प्रोवाइड करती है। सेकंड वो जिनको कोई लैंड वगैरह खरीद करनी होती है, तो उनको भी अल बरका बैंक अलबैत होम फाइनेंसिंग स्कीम के तहत लोन्स प्रोवाइड करती है। तीसरे वो लोग जिनके पास अपनी कोई लैंड वगैरह तो है पर उस पर वो कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना चाहते हैं, तो अल बरका बैंक अलबैत होम फाइनेंस स्कीम के तहत उससे लोन प्रोवाइड करती है। एंड द लास्ट वन आर दोस्त जिनके पास अपना घर तो है लेकिन वो अपने घर को रीनोवेट कराना चाहते हैं, तो इस स्कीम के तहत ही अल बरका बैंक को लोन फराहम करती है। अब मैंने कल इसकी वेबसाइट पर देखा था कि 2 किस्म के बंदों को अल बरका बैंक ये लोन प्रोवाइड करती है। एक सैलरीड पर्सन और दूसरा वो जो बिजनेसमैन से। जो सैलरीड पर्सन से उनकी मंथली इनकम 50K से अबव होनी चाहिए, तभी इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। और जो बिजनेसमैन से उनको उनकी जो मंथली पे होनी चाहिए वो 80K से अबव होनी चाहिए, तभी इसके लिए वो एलिजिबल होंगे। द नेक्स्ट वन इज रहमान ट्रैवल सर्विसेज। अब अल बरका बैंक वालों ने क्या किया है, बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज के साथ मिल गए हैं, जिनमें वो ट्रैवल एजेंसीज के साथ मिल गए हैं जिनमें वो ट्रैवल टूर पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जो होटल अकोमोडेशन हो जाती है, वीज़ा ट्रैवल जो भी मतलब के पैकेजेस हो जाते हैं वो कलेक्टिवली प्रोवाइड कर रहे हैं इस स्कीम के तहत। थर्ड वन इज सरपरस्त फैमिली तकाफुल प्लान। अब तकाफुल प्लान अल्टरनेटिव है इंश्योरेंस के। जैसे कन्वेंशनल बैंक्स में हम इंश्योरेंस कराते हैं अपनी कार की, अपनी लाइफ की या अपने घर की, जिसमें अगर कार लाइफ में को कोई नुकसान पहुंचता है तो बैंक वाले हमें मतलब उसके मुकाबले वो फंड देते हैं। अब सरपरस्त फैमिली तकाफुल प्लान में क्या होता है कि हम अपनी या अपनी फैमिली की कोई मतलब तकाफुल कराते हैं, जिसमें अगर हमारी लाइफ को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो उसके मुताबिक वो हमें फंड्स हमें या हमारी फैमिली को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ वन इज अल बरका डेबिट मास्टर कार्ड। अब यहाँ पर 2 टर्म्स आ जाते हैं, एक आ जाता है डेबिट कार्ड और दूसरा आ जाता है मास्टर कार्ड। वैसे डेबिट कार्ड क्या होता है कि हम इस कार्ड के तहत किसी भी बैंक ATM से ट्रांजैक्शन मतलब के पैसे निकलवा सकते हैं, और दूसरा इस डेबिट कार्ड की मदद से ही हम ऑनलाइन पेमेंट्स ऑनलाइन बिल्स की अदायगी कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है मास्टर कार्ड। अब फर्स्ट सपोज मेरे पास UPI का डेबिट कार्ड है, तो मेरे पास अच्छा मास्टर
कार्ड से क्या होता है कि हम एक ही डेबिट कार्ड को यूज़ करके मुख्तलिफ बैंक एक ही डेबिट कार्ड को यूज़ करके मुख्तलिफ ATMs में जाकर के कैश को विड्रॉ करा सकते हैं। यहाँ पर अलबराका का डेबिट मास्टर कार्ड में क्या होता है, हमें ड्यूअल इंटरफेस मिलता है जिससे हम मतलब के ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ ATMs से पैसे की अदायगी कर सकते हैं। The fifth one is अलबराका यूनियन पे डेबिट कार्ड। यूनियन पे डेबिट कार्ड का ये फंक्शन होता है कि हम इंटरनेशनली अपनी बिल्स की अदायगी कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाना होगा तो आपके पास अगर अलबराका का यूनियन पे डेबिट कार्ड होगा तो उससे आपको इसी पाकिस्तान का जो यूनियन पे डेबिट कार्ड होगा उससे आपको इंटरनेशनली आप बिल्स की अदायगी कर सकते हैं या कैश की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सिक्स्थ वन इज अलबराका मोबाइल बैंकिंग। अब अलबराका वालों ने जो अपना मोबाइल बैंकिंग लॉन्च किया है जिसमें हम अपने अकाउंट की मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है या कौन सा अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स। और इसके अलावा इसी मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में उन्होंने कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड की है, जिससे अगर हमें कोई क्वेरी वगैरह आ जाती है तो हम इस मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए अपनी क्वेरी हल कर सकते हैं। द लास्ट वन इज ट्रैक्टर एंड एग्री फाइनेंसिंग। अब ये जो फर्स्ट वाला था अल्बैक होम फाइनेंसिंग, इसमें फकत सैलरी और बिजनेसमैन को फटा हो रहा था। अब उन्होंने क्या किया है, ट्रैक्टर एंड एग्री फाइनेंसिंग स्कीम के तहत वो फार्मर से या एग्रीकल्चर बिजनेसेस को भी उन्होंने फायदा दिया है, जिसमें ये फकत फार्मर्स और एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेसेस को लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि मतलब कि वो ट्रैक्टर वगैरह या कोई मशीनरी फार्मिंग से रिलेटेड खरीद सकें। नेक्स्ट वन इज मोहम्मद साजिद शेख। My name is Mohammad Sajid Sheikh, roll number 2061, student of BBA Part 4, Specialization in Finance. Today my topic is Albaraka services. Albaraka services provide various e-funds such as Director Bank Fund Transfer Facility. Internet बैंक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी ये होता है कि इसमें जो फंड्स ट्रांसफर होते हैं थ्रू ATM के जरिए एंड इसमें ये होता है कि चेक वगैरह की भरने की जरूरत नहीं होगी। फंड ट्रांसफर ये जो है ग्लोबल कॉन्सेप्ट है और जो है इसमें हम फंड ट्रांसफर जो है आसानी से अपने कर सकते हैं। और सेकंड अपनी ई स्टेटमेंट वो जो होती है इसमें मोबाइल बैंकिंग के जरिए हम स्टेटमेंट जो है ना वो सारी आ जाती है, जिसमें आपका कितना मुनाफा आया और कितनी आपने ट्रांजेक्शन्स की अपने अकाउंट में, कितने आपने फंड्स ट्रांसफर किए और कितने आपने जो है ना सर्विसेज की जो बिल पेमेंट्स वगैरह की, इसमें ये सारा होता है इस स्टेटमेंट में। एंड अलबराका होम रेमिटेंसेस। अलबराका होम रेमिटेंसेस में ये होते हैं जो फॉरेनर कंट्री में वो जो काम करते हैं और वो जो है ना इसमें पैसे जो है इसके जरिए हम अलबराका के जरिए हम पैसे भेज सकते हैं और वो जो है ना इसमें ये फैसिलिटी होती है, इसमें मोर एफिशिएंट एंड मोर मतलब वो जो है ना प्रोवाइड होती है फैसिलिटी के आपके रेमिटेंस जो है वो बगैर के टाइम जोन वगैरह या कोई अलग से कोई फॉर्मेट के बगैर आप आसानी से जो है ना अपने पैसे भेज सकते हैं, वो आइदर डॉलर्स हो और यूरोज हो और फॉरेन करेंसी हो। और दूसरा है अलबराका कैश मैनेजमेंट। अलबराका कैश मैनेजमेंट में ये होता है इसमें कैश पेमेंट भी होती है और कैश जो है ना रिसीव भी होती है। तो अलबराका में बैंक में ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया है जिसमें कैश मैनेजमेंट जो है कस्टमर्स के बैंक अकाउंट से इस तरह मेंटेन किए जाते हैं, वो जैसे वो उसकी फैसिलिटी को मतलब वो प्रोवाइड करे और इसमें जो है ना मतलब कस्टमर जो है इसमें अप्रेस हो और बार बार भी रखता है। और दूसरा है अलबराका इंटरनेट बैंकिंग। इसमें ये है कि हम आसानी से जो अपने मोबाइल बैंक के जरिए वो फंड ट्रांसफर करते हैं और ट्रांजेक्शन्स करते हैं और जो है ना मतलब बिल यूटिलिटी बिल्स पेमेंट होती है और इसमें बहुत कुछ और होता है, जैसे इसमें आप कोई ज़कात अदा करना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए वो जो है ना आप कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक है ट्रेड फाइनेंस एंड सर्विसेज। ट्रेड फाइनेंस एंड सर्विसेज में ये होता है वो फाइनेंसिंग दी जाती है इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स को कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉलर्स को मतलब वो आप अपने मुल्क में लाएँ और स्टेट बैंक की वो इसमें ये उन्होंने बताया कि हमारे स्टेट बैंक की वो पॉलिसी है कि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करें कि हम आपको फैसिलिटीज़ दें, तो उसमें रिस्क को जैसे कम किया जाए वो अलबराका बैंक उसमें फैसिलिटी देती है कि आप जो रिस्क को कम करें, जैसे इन्फ्लेशन आ गया और डॉलर का रेट फ्लक्चुएशन हो गई
और डॉलर्स का, वो उसमें ये फुल मतलब इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। थैंक्स टू द टॉपिक। मोहसिन, आपने बताया अपनी स्लाइड में कि डेबिट और एटीएम कार्ड के बारे में बताया, तो ये कौन सी डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, मतलब किस टाइप के? मुख्तलिफ टाइप के होते हैं डेबिट कार्ड, तो इनके पास कितने टाइप से होते हैं और कौन से? मतलब एक तो डेबिट कार्ड होता है जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं और मतलब कि कैश की विड्रॉ भी करा सकते हैं। ये डेबिट वो क्या था इसका नाम, वीज़ा कार्ड, वही मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड। अच्छा, ये जो डेबिट और मास्टर कार्ड है ना, ये एक अमेरिकन कंपनीज हैं। पहले क्या होता था कि अब फर्स्ट सपोज मेरा जो अकाउंट है यूपीएल अकाउंट है और मैं चाहता हूँ कि किसी एसबीआई के एटीएम से कैश की विड्रॉ कराऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेरे जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो एसबीआई के अकाउंट में नहीं होगी, ठीक है ना। तो बाद में क्या आया कि ये दो कंपनीज आई, डेबिट और मास्टर कार्ड। इन्होंने क्या करा कि बहुत सारी मतलब कि बैंक्स थी ना, उन्होंने अपने कस्टमर्स की जो डेटा थी वो इनको ट्रांसफ़र कराना शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, ये फिर मर्जर बन गए बहुत सारे मतलब के बैंक के साथ। इसलिए क्या होता है कि अब हम किसी भी मतलब के एटीएम से कैश विड्रॉ करा सकते हैं। अब अगर आपके पास अगर यहाँ पर कोई कार्ड वगैरह हो, उस पर भी नीचे वीज़ा वगैरह लिखा होता है। तो ये जो प्रोवाइड करते हैं वो डेबिट मास्टर कार्ड प्रोवाइड करते हैं। बस ये एक ही प्रोवाइड करते हैं मास्टर कार्ड, मतलब इनके पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, मतलब डेबिट कार्ड्स होते हैं, एक वो भी होता है जर्नी कार्ड या ऐसे जर्नी का मैंने नहीं पढ़ा था, एक तो पेपाल होता है और ऑनलाइन और बहुत सारे होते हैं। फिलहाल मैंने तो यही देखा है। मेरा सबसे यही क्वेश्चन था कि आपने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं किया, आपने प्रोडक्ट, सर्विसेज और अकाउंट से सबको मिला दिया। जैसे सपोज करें आप जो अकाउंट्स हैं उनको भी प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं, जो उनकी फाइनेंसिंग है उसको प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं, या जो उनकी सर्विसेज हैं उनको प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं और सर्विसेज को कुछ और कंसीडर कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया आप बताना। सबसे पहले तो इनके प्रोडक्ट्स अलग से लिखे हुए थे, जो अकाउंट्स इनके थे ना वो प्रोडक्ट्स हैं, और जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी अलग से थे, जिसमें एलबिट था और दूसरे थे डेबिट कार्ड्स थे या दूसरे जो भी थे यूनिट पे कार्ड्स थे। बाकी जो आपने कहा कि डिफरेंशिएट न करें कन्वेंशनल बैंकिंग के साथ, नहीं, मैं कह रहा था आपने अकाउंट्स और प्रोडक्ट्स को डिफरेंट अकाउंट और प्रोडक्ट एक ही जगह पर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स वगैरह इसमें ये जो है लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, जिसमें ये अकाउंट्स है सारे। आपने प्रोडक्ट्स के नीचे अकाउंट्स लिखे हुए हैं, देखें आप। हाँ, ये इनके प्रोडक्ट्स है, इस्लामिक प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट तो हम फाइनेंसिंग को कंसीडर करते हैं ना, जैसे उनकी अगर होम फाइनेंसिंग है वो प्रोडक्ट हो गई। अकाउंट सर्विसेज है, सर्विसेज तो एटीएम सर्विस हो गई, इंटरनेट सर्विसेज हो गई, इनको हम शायद कंसीडर करते हैं मेरे ख्याल से। होम फाइनेंस में क्या मिलता है? कैसे? होम फाइनेंस वो एक प्रोडक्ट है उनकी। प्रोडक्ट नहीं, सर्विस है। सही है। जी जी सही। ट्रैवल सर्विस है, ट्रैवल सर्विस हो सकती है, और ये डेबिट मास्टर कार्ड्स हैं, यूनियन पे कार्ड्स हैं, ये सर्विसेज हैं। लेकिन जो होम फाइनेंस है वो सर्विस नहीं होगी, वो तो प्रोडक्ट कैसे नहीं होती आप जी, कैसे नहीं होती आप जी सही है। In the last, you witnessed a wonderful presentation on the oral introduction of the Al-Barqa Islamic Bank. So now, some of the questions were also asked from our team members. So I'm keeping from the comments. Thank you very much for making some reports. So inshallah, very soon we will go for another presentation on the Islamic Bank. Thank you very much.